Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम हरवीर। थैंक यू, नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi calls for reducing dependence on foreign goods and focus on domestic manufacturing. New Demat account opening per month surged more than 6 times in 2 years, which shows growing risk appetite among the young investors, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी विनिर्माण पर जोर देने का किया आह्वान। प्रतिमाह नए डीमैट खाते खुलने की गति 2 वर्षों में 6 गुना से अधिक बढ़ गई है, जिससे युवा निवेशकों में जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ने का संकेत मिलता है, कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। Prime Minister Narendra Modi has called for reducing dependence on foreign goods and focus on domestic manufacturing. Mr. Modi stressed the need to reduce slavery to foreign goods as the country marks its 75th anniversary of independence. The Prime Minister was addressing virtually the inaugural ceremony of JITO Connect, a global summit organized by Jain International Trade Organization in Pune. Mr. Modi said we have to reduce dependence on foreign products, find new destinations for export, create awareness in local markets. He said that everyone in the world feels that India is moving forward with all its potential and performing with the purpose of global welfare too. He added that the Indian vision is very clear and Atmanirbhar Bharat is our future course and also our goal. The Prime Minister said that the world is looking up to India with a lot of expectations and confidence in various areas, be it global peace, prosperity or ways to find solutions for global challenges. He said that there may be areas of special expertise, areas of concern, or there may be even differences of opinion, but yet the prosperity of new India connects everyone. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के पहले कॉलर दिल्ली से रजा हसनैन। नमस्कार, सवाल पूछें। जी मैडम, मेरा सवाल है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये कैसे काम करती है और इसका इंडिया में क्या फ्यूचर है, मतलब इंडियन सिटीजन को इन्वेस्ट करने का फायदा है इसमें आगे? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का एक प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, लेकिन अभी हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये बात अलग है कि इसके ऊपर टैक्स उसके लगा दिया गया है हमारे इसमें बजट में, नए बजट में। बट अभी भी क्योंकि क्रिप्टो
बहुत ही वोलेटाइल तरीके का प्रोडक्ट है और वो डिपेंड करता है एल्गोरिदम्स कैसे काम करती हैं और अभी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी उसमें नहीं है। वो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसमें वोलेटिलिटी आती है। कुछ देशों ने जरूर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स लेना और ये सब शुरू किया है और कुछ कंपनीज ने भी शुरू किया है, तो लेकिन अभी हमारे यहाँ उस तरीके से मेन स्ट्रीम में इसका चलन नहीं है और लीगली ये उस तरह का एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। और अब भिलाई से रवि है हमारे अगले कॉलर। रवि जी नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मित्रा, मेरा सवाल है आज का जो न्यूज है 100 यूनिकॉर्न के रेफरेंस में। मेरा सवाल है कि ये स्टार्टअप जो है वो क्या ये सभी सारे के सारे इंडियन रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं क्या? दूसरा ये कि परसेंटेज वाइज जो है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या भागीदारी है इस स्टार्टअप्स में? और तीसरा ये कि ये अक्सर हम जो है स्टार्टअप के रेफरेंस में ये बात करते हैं कि बॉटम लाइन पे ध्यान देना होगा, बॉटम लाइन पे ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे बहुत सारे इनमें से जो है इनका ब्रेक इवन नहीं हुआ है शायद, और यदि ऐसा है तो इनकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। देखिए, ये एक तो जो इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड है उनमें बहुत सारी फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आया है और जो भी हमारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के लेवल पर पहुंचे हैं उनमें बड़ा भारी निवेश है, खास तौर से वेंचर कैपिटलिस्ट का और फंड्स का इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा है। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर की कंपनियां हैं, वहीं पे लिस्टेड है। एक तो ये इसमें पहलू है। दूसरे, ये आपने सही कहा है कि देखिए, एक तो स्टार्टअप इज एन आइडिया कि वो किस तरीके से काम करता है, कल को एक बड़े इकोनॉमिक स्केल पर उसको ले जाकर के एक बिजनेस एंटिटी के रूप में स्टैब्लिश किया जा सकता है क्या। ज्यादातर जो हमारे यूनिकॉर्न है वो लगभग सर्विस सेक्टर में ही है, क्योंकि वो आईटी बेस्ड ही ज्यादातर प्रोडक्ट्स उसमें है या फिर सर्विसेज देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस उस तरीके से स्टैब्लिश हुए, वो रिटेल में हो या बाकी दूसरे एजुकेशन में हो, एडटेक कंपनीज हो और इवन स्टॉक मार्केट में भी कुछ आए हैं। साथ में ये बात आपने सही कही है कि प्रॉफिट का एक चैलेंज है। बीच में कई सारे इस तरीके के जो यूनिकॉर्न है उन्होंने वो अपने आईपीओज लेके आए, लिस्टिंग हुआ, उसको लेकर के बाद में कई सारे सवाल उठे और अब नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। तो सेबी थोड़ा लिबरल थे शुरू में, क्योंकि कई सारे जो इस तरीके के आईपीओज आए उनका जो इश्यू प्राइस था और अभी जो मार्केट में उनका वैल्यू है स्टॉक्स का 25% 30% तक भी गया है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के हाथ जले हैं। ये इन्वेस्टर को देखना चाहिए क्योंकि बहुत पैसा पंप हुआ है। यू कैन इमेजिन के $5 बिलियन $10 बिलियन तक का वैल्यूएशन हो गया है, लेकिन अगर हम देखेंगे उनका रेवेन्यू क्या है, उनका प्रॉफिट का क्या सिनेरियो है, वो अभी बहुत ही चैलेंजिंग है और ये तो इन्वेस्टर्स को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसीलिए ये माना जाता है कि जो कंपनीज का फंडामेंटल अच्छा है और जिनके अच्छे रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स अच्छा है, उस तरफ जाना चाहिए। और इसीलिए अभी आप देखेंगे कुछ जो इस तरह के आईपीओ लेकर के आने वाले थे उनको अपना प्राइस करेक्शन भी करना पड़ा या इशू साइज को छोटा करना पड़ा। तो वो लोग भी ये समझ रहे हैं कि ये अब चीजें अभी उतना नहीं है कि जैसे फ्लो में लोगों ने आकर के बहुत सारा पैसा लगा दिया होगा। डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा इनमें फंड्स का लगा है और फंड्स भी देखते हैं कि ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होता है कि ये लोग जब लिस्टिंग करते हैं वो अपना हिस्सा बेच करके निकल लेते हैं। तो ये इसीलिए थोड़ा ट्रिकी है। Since we talked about unicorns, let's tell our listeners, and before I proceed with the information, Gurunath from Thane and Sanjay from Delhi, please stay with us, because India's wave of unicorn reaches an all-time high, with Neobank Open becoming the 100th unicorn in the country. Commerce and Industry Ministry said that 1 out of every 10 unicorns born globally belongs to India. Neobank Open has a funding of $50 million from IIFL along with the existing investors. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal highlighted this achievement. The Indian startup ecosystem, the third largest in the world, is number of unicorns, is now home to 100 unicorns with a total valuation of $332.7 billion. The term unicorns refers to startups that attain a valuation of more than $1 billion.
और अब गुरुनाथ जी हैं थाने से हमारे अगले कॉलर। गुरुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछे। जी मैम नमस्कार। हरवीर सिंह जी भी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है, सर ये जो 2 दिन से जो गिरावट देखी गई मार्केट में और आरबीआई ने जो रेपो रेट में बढ़ोतरी की अचानक, सर उसके मतलब क्या रीजन है कि मतलब ऐसे मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी के समय तो ऐसे संकेत तो मिले नहीं थे, क्या रीजन है कि अचानक बढ़ाने पड़े और आगे भी रेपो रेट में क्या बढ़ोतरी हो सकती है क्या? थैंक यू। देखिए, अभी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ने की जो दर है, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है और इवन यूएस जैसे कंट्री में डबल डिजिट तक पहुंच रहा है, यूरोप में बहुत ऊंचा है और हमारे यहाँ भी रिटेल इन्फ्लेशन जो आरबीआई का एक एक्सेप्टेबल लिमिट है 4% ±2, उसके ऊपर चली गई है, 6.95% हो गई है। और रिजर्व बैंक ने लगातार क्योंकि पैंडेमिक के चलते उनका जो स्टांस रहा है प्रो ग्रोथ रहा है, उनका कोशिश रहा है कि लोगों को सस्ते कर्ज मिले, कंपनियों को सस्ता एक तरीके का इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उपलब्ध हो, जिससे कि हम ग्रोथ को फिर से कैप्चर करें और इकोनॉमी में ग्रोथ बनी रहे। लेकिन लग रहा है कि अब ये काफी स्पष्ट हो गया है कि महंगाई से लड़ना एक बड़ा चैलेंज हो गया है और महंगाई क्योंकि सिर्फ हमारे डोमेस्टिक मसलों के चलते नहीं है, इसमें बहुत सारा ग्लोबल सिनेरियो है। एक तो वैसी पैंडेमिक का मसला था जिसमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आया, दूसरे जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसने बहुत सारा अनिश्चितता पैदा की दुनिया भर में, उसके चलते जो कमोडिटीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़े, वो एनर्जी हो या फूड प्रोडक्ट्स हो, वो सब रिकॉर्ड पे हैं। तो ये सारे पहलू हैं। अब ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को जो उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनको अपना स्टांस बदलना की स्थिति आई, संकेत थे उसमें भी जब मीटिंग हुई कि देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर क्या करना है, इसीलिए ये बीच में फैसला लिया जो कि 40 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में चेंज किया है, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि अब हमें जो लिक्विडिटी है उसको कुछ सख्त करना पड़ेगा और ये प्रिंसिपल भी है, महंगाई पर जब आपको काबू पाना है तो आप लिक्विडिटी को कम करते हैं। और क्योंकि दुनिया में ये सब कदम सारे सेंट्रल बैंक एक एक करके उठा रहे हैं, उससे क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से थोड़ा जो फॉरेन इन्वेस्टर है अब उनके पास ऑप्शन होता है कि वो जहां बहुत कम इंटरेस्ट रेट थे अगर वहां थोड़ा ज्यादा हुए तो वहां अपना पैसे को वो सिक्योर जगह पर लगाएं। इसीलिए ये सारे फैक्टर हमारे मार्केट को डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं। और शायद वो ये भी पूछ रहे थे कि इन फ्यूचर आपको लगता है कि ये बढ़त का सिलसिला शायद जारी रहेगा या नहीं, क्या? देखिए, एक तो अभी अगर आप देखेंगे कि इवन आरबीआई के अनाउंसमेंट के पहले कुछ बैंक्स ने एमसीएलआर में चेंज किया था और ये स्पष्ट संकेत है कि अभी आने वाले कुछ दिन जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, वो और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इससे जाहिर सी बात है कि अगर सस्ता लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होगी तो उसका असर सीधा मार्केट के ऊपर आएगा। Joining us now from Delhi is Sanjay. Sanjay, we welcome you. संजय, हाँ जी, ये जो इन्फ्लेशन है अभी ये सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट की वजह से है, तो इसमें मतलब ब्याज को ऊपर करने से क्या उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कितनी सहायता मिलेगी? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो मतलब इंटरेस्ट रेट और कितना भी बढ़ाने की संभावना है और इसका शेयर बाजार पे और कितना नकारात्मक असर हो सकता है, हमें को ये बताइए। देखिए, अभी तो ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि जो ब्याज दर है जिन्हें हम पॉलिसी रेट बोलते हैं, जो सेंट्रल बैंक तय करता है, उसमें कितनी और बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये माना गया था कि 25 बेसिस पॉइंट करके 50 बेसिस पॉइंट तक जाएंगे और उसके बाद देखेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट में ये 40 बेसिस पॉइंट हुआ है और बाकी कंट्रीज में भी ये सब चेंजेस आ रहे हैं, तो मार्केट तो अफेक्ट हो रहा है। दूसरे बिल्कुल ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है ग्लोबली, अगर आप देखें कि जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो गैस हो या ऑयल हो, उसमें सप्लाई साइड कंस्ट्रेन आया है। इवन जो एग्रो कमोडिटीज है, क्योंकि बेलारूस, रशिया और यूक्रेन ये देश बहुत बड़े निर्यातक है कमोडिटीज के, वो कोयला हो, फूड ग्रेन हो, एडिबल ऑयल हो और फर्टिलाइजर्स हो, तो ये चीजें और साथ में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है।
तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी भी लागत बढ़ी है, तो इस वजह से भी ये इन्फ्लेशन का थोड़ा दायरा बड़ा है. इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू कमोडिटीज. जी, अब अगले कॉलर है योगेंद्र दिल्ली से. योगेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें. मैडम, मैं से रिक्वेस्ट है जी, बोलिए. कॉर्पोरेशन से मैं रिटायर्ड हूँ, सीनियर सिटीजन, 88 साल मेरी उम्र है. 4 महीने होते हैं, पेंशन नहीं आती. तो कहाँ ये अपनी वो कंप्लेंट कर सकते हैं? देखिए, ये तो एक तो अपने डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं, फिर एक सबसे पहले तो एक सर्टिफिकेट देना होता है एनुअल सर्वाइवल का. और इनका जो बैंक है जहां इनका पेंशन आती है, जिस डिपार्टमेंट में भी ये है, इनको बैंक में देखना चाहिए. बिकॉज किसी इंडिविजुअल का हो सकता है कोई डिस्क्रिपेंसी कभी आई हो, उसकी वजह से हो सकता है. अदरवाइज किसी भी विभाग से पेंशन किसी एक इंडिविजुअल को तो नहीं जाती. इट्स ए रेगुलर फ्लो टू ऑल बेनिफिशियरीज. तो इन्हें थोड़ा ये जहां से रिटायर हुए वहां बात करना चाहिए, और जिनका बैंक है सबसे पहले तो बैंक को अप्रोच करना चाहिए उनको. फ्रॉम खजुराहो वी आर जॉइंड इन बाय जितेंद्र. वी वेलकम यू. जी नमस्ते. हरवीर जी को भी नमस्ते. नमस्ते सर. 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया वो आरबीआई एक्ट 1934 के संशोधन की बात किया गया. उसमें इस बात को मेंशन किया गया कि ये कमेटी 2 माह में समीक्षा बैठक करेगी, लेकिन पहली बार प्रस्तावित मीटिंग से पहले डिसीजन लिया गया. ये आरबीआई के नियमों का वायलेशन है या फिर आरबीआई की न्यू स्ट्रेटजी का हिस्सा है? थैंक यू. देखिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रिपोर्ट तैयार करती है और वो एडवाइस करती है, जो तमाम सारा जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके आधार पर समीक्षा करती है, सारे मेंबर्स उसके. लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीआई के जो प्रदत्त उनको जो अधिकार है, और अगर आरबीआई को लगता है कि हमें कोई स्टेप लेना है वो आरबीआई ले सकता है. ऐसा नहीं है कि ये वायलेट करे उस तरीके से. और क्योंकि कमेटी तो अपनी रिपोर्ट देती है, उसके बाद फिर आरबीआई जब अनाउंस करते हैं तो वो सारा तो फिर आरबीआई बाकी सारी चीजों को असेस करने के बाद तय करता है. और सिचुएशन भी बहुत डायनामिक है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है. बिल्कुल जी. और अब मुंबई से गोपाल है हमारे अगले कॉलर. गोपाल जी, स्वागत है, सवाल पूछिए. जी मार्केट मंत्री को नमस्कार. सर, मेरे 2 सवाल है. पहले सवाल सुन लीजिए तो मेरे को अच्छा रहेगा. मैं आपका जवाब रेडियो पे सुनता हूँ. मेरा पहला सवाल है, जो पीएमसी बैंक का जो मर्ज हुआ है यूनिटी बैंक पे, तो इन्होंने जो 5 लाख जो क्लेम जो मिला, तो सर इन्होंने क्या किया, 5 लाख क्लेम का जो 21-22 का ईयर का जो इंटरेस्ट मिला था 8% के हिसाब से, ये बैंक ने रिवाइज करके उसे 5% इंटरेस्ट काट दिया. तो जो पहले इंटरेस्ट हम लोग ने ले लिया तो प्रिंसिपल अमाउंट से काट के हाथ में दिया अमाउंट बाकी का. तो ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसा ये लोग अमाउंट काट सकते हैं क्या? थोड़ा बताएंगे. दूसरा सवाल ये है कि मार्केट में इस हद तक गिर चुका है कि मैं तो संभलने को मुश्किल हो गया. मैं मिड कैप स्मॉल कैप में अमाउंट लगा के बैठा हूँ. मैंने 3 लाख रुपया लगाया है 2 महीना पहले. आज उसका वैल्यू 1.5 लाख है. तो मैं उसको क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. एकदम ऐसा गिरा कि मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ. गोपाल जी, हरवीर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. देखिए, ये जो पीएमसी का आपने बताया है, जो सेटलमेंट और जो उसमें क्लेम का है, वो तो जो तय हुआ है मानक, उसके हिसाब से ही वो कर पाएगा. और अगर आपको कोई उसमें लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसका कंप्लेंट कर सकते हैं. आरबीआई से भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बिकॉज रेगुलेटर के पास आप जा सकते हैं. बाकी आपका जो पीएमसी बैंक ने इंटरेस्ट दिया था, तो यूनिटी बैंक ने किस हिसाब से काट दिया इंटरेस्ट, रिवाइज किस हिसाब से कर दिया सर? नहीं, ये मैं थोड़ा के पास जाके पूछ सकते हैं. देखिए, अगर पहले से डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था और अब उसका मर्जर दूसरे बैंक में हुआ है, एक तो ये है कि दूसरे बैंक के जो नियम है वही अब लागू होंगे, बिकॉज बैंक का ओनरशिप उसके पास है. लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो आप ऑम्बड्समैन में जाकर के उनको शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि उसको आपको क्लैरिटी आ जाए. कई बार क्या होता है कि जो हमें लगता है, लेकिन जो रूल्स और जो उसके लिए जो चीजें तय की गई है वो थोड़ा फाइन एक तरीके से प्रिंट में भी होती है, उनको हमें ठीक से समझने की जरूरत पड़ती है. दूसरा इनका इन्वेस्टमेंट का था क्वेश्चन जी. बट दैट इज रिस्क. नेचुरली मार्केट इज ऑलवेज यू हैव टू टेक इन माइंड यू आर टेकिंग रिस्क. तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हमेशा कही जाती है. वी आर गोइंग इन फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वील बी बैक विद यू हरीश वेरी सून. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। फरीदाबाद से हरीश है हमारे अगले कॉलर, आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मैम और इंटायर टीम को नमस्कार। सर मेरा क्वेरी ये है कि जो LIC का IPO आया है, तो सर इसमें एक तो एम्प्लॉय कैटेगरी है, रिटेलर है और तीसरा आपका पॉलिसी होल्डर का लिए। तो सर हम क्या तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिर्फ एक ही में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो एक इंडिविजुअल को तो वो तो एक ही एप्लीकेशन लगाएगा, तो आप जो कैटेगरी आपको लगता है उसमें जिसमें आप आते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो। जी, अब लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 26 लाख नए डीमैट खाते प्रति माह खोले गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में हर महीने औसत 4 लाख नए डीमैट खातों के मुकाबले वर्ष 2020-21 में यह संख्या तिगुनी होकर 12 लाख प्रति माह हो गई और वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त वृद्धि दर्ज करते हुए नए डीमैट खातों की औसत संख्या लगभग 26 लाख प्रति माह रही। इससे पता लगता है कि युवा निवेशकों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और वे जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में आज राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड NSDL के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। श्रीमती सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को धन्यवाद देते हुए कहा कि श्री मोदी ने जनधन योजना का शुभारंभ किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI और NSDL के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारतीय खुदरा निवेशकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में तीव्र बदलाव आए हैं और सरकार की कई पहलों के द्वारा वित्तीय समावेश को बल मिला है। और अब दीपक है दिल्ली से हमारे साथ। दीपक जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम दीपक है एंड माय क्वेश्चन इज हाउ इन्फ्लेशन कम्स अंडर कंट्रोल ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक बाय द सेंट्रल बैंक एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट इन्फ्लुएंस द स्टॉक मार्केट? थैंक यू। Actually, this is a concept basically and principle. If there is a high liquidity into the system, so if you increase the interest rate, then it reduces the liquidity, and there will be less liquidity. There will be less demand for the product. So that's why this is the basic concept on that. So this, I think usually central banks use this main principle to suck liquidity from the system by increasing the interest rate to tame the inflation. Another point is that macroeconomic, definitely macroeconomic inflation should be under control. Your growth rate must be very good, and companies must be making good profits. All your parameters of industrial production, PMIs, or service sector growth must be good. All these basic things. Anyone जिनको high frequency indicators हम कहते हैं। जी जी। Joining us from Amritsar is Prem Sagar. We welcome you, Prem Sagar ji. Please ask your question. जी नमस्कार। अमृतसर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ये खाने पीने की चीजों का संकट जो है हमारे पाकिस्तान में भी आ रहा है, श्रीलंका में भी आ रहा है। हमारे देश की क्या वजह है? देखिए, खाने पीने की चीजों का तो महंगाई पूरी दुनिया में है, उसके बहुत सारे कारक हैं उसके पीछे। जैसे अगर आप देखोगे जो खाद्य तेल है उसमें, क्योंकि यूक्रेन एक्सपोर्ट करता था सूरजमुखी का तेल, वो बंद पड़ा हुआ है। हम लोग भी वहां से इंपोर्ट करते थे करीब 20-25 लाख टन जो है। दूसरे इसका फर्क पड़ेगा, सप्लाई घट गई है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो पाम ऑयल के बड़े एक्सपोर्टर हैं वहां पर भी इशू है, उन्होंने भी एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस भी लगाए हैं और एक्सपोर्ट कुछ कम किया है। तो ये फैक्टर्स हैं। एक तो ये ऑयल का हो गया, इसी तरीके से शुगर प्राइसेस भी अच्छी ऊपर गई हैं और
जो फूड ग्रेन है, खाद्यान्न जिसे हम बोलते हैं, गेहूं, उनके दाम भी ऊपर गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जब वैश्विक स्तर पर कीमतें ऊपर गई हैं तो उसका असर सभी देशों में देखने को मिलेगा। वो हमारे पड़ोसी देश हो या हम हो, सब जगह उसका कुछ न कुछ असर है, क्योंकि अगर हमारी आयात के ऊपर निर्भरता है कहीं ना कहीं, तो वो फिर इस बात का असर डालती है कि दुनिया में दाम अगर ज्यादा है तो हमें भी उसका असर हमारे ऊपर भी आता है। So what will happen to the wheat output? It looks likely that the fall in 2022 after 5 consecutive years of record harvest is going to be sharp, and the sudden rise in temperatures in mid-March because summers came in quite early and it affected our produce. Yes, Rajesh, wheat is a winter crop basically. And this production process of any agricultural produce is natural. It cannot be controlled by any. If you are doing hydroponic or controlled cultivation, that is another case. But in large scale, when you go for cultivation, so when suddenly temperature started rising in March, and very big spike in the temperature, and that is the particular time when grain filling starts. Otherwise, till mid-February, we were supposed to harvest a very bumper crop this year. But luckily, we have very high bumper crops here. But due to this sudden temperature rise, wheat is very sensitive to the temperature. And particular days around the crop, when crop is ripening, that made the grain shrink. Okay. And that affected the overall production. Okay. And in particular in the region of like Haryana, Punjab, Western UP, Eastern UP and Bihar, maybe Madhya Pradesh was affected less because crop is early there compared to these areas. Okay. We have two callers online with us. सतीश है पहले कॉलर दिल्ली से। सतीश जी सवाल पूछे जल्दी, समय बहुत कम है। हरवीर जी को मेरा क्वेश्चन है कि सर ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में अगर गलती से डाली है वो शेयर रजिस्ट्रार ने, तो उसको कंप्लेंट किसको की जा सकती है? दूसरा, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड से ये जो शेयर्स वापस लेने का प्रोसीजर है ये बहुत कम्बरसम है, इसका कोई आसान रास्ता भी है क्या? देखिए, जो सिक्योरिटीज और ये हमारा जो कानून है सेबी का और इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रोटेक्शन के जो नॉर्म्स हैं वही इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अलावा कोई दूसरा अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट डेफिनेटली सम सजेशंस कम्स टू द मिनिस्ट्री ऑल्सो। उन लोगों का भी इसके ऊपर इशू रहता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी। और बिकॉज सेबी अपने आप में एक ओवरऑल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे मसलों को देखता है। जितेंद्र है जयपुर से, हमारे पास सिर्फ 40 सेकंड है। जितेंद्र जी जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ, तो मैडम हमारा ये प्रश्न है कि अभी एक दो कौन से सेक्टर में अभी लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो रिजनेबल प्राइस पे है? जी, कौन से सेक्टर? रीजनेबल वैल्यूएशंस कौन से? नहीं, अब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो केमिकल है, फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, और फार्मा इज ऑलवेज एवरग्रीन, सो यू कैन गो फॉर दैट। सो अगर वो लंबे समय का उनका है होराइजन। और भी कोई आउटलुक ऑन बैंकिंग एंड आईटी वेरी ब्रीफली? Yes, IT is always good because use of IT is increasing and revenue is also increasing, and we are doing very well in IT sector. And what do you expect in the coming week? From the market, of course. Definitely there can be volatility. We cannot rule out the volatility in the market. समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरवीर जी, आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू हरवीर फॉर बीइंग विद अस। इससे पहले कि आप हेडलाइंस पढ़े, हम धन्यवाद करने अपने श्रोताओं का भी उत्साह के साथ भाग लेने के लिए। The headlines before we close. Prime Minister Narendra Modi calls for reducing dependence on foreign goods and focus on domestic manufacturing. New demat account opening per month surged more than 6 times in 2 years, which shows growing risk appetite among young investors, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.